Today we discuss about the uniformly accelerated motion. अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन in which the speed remains constant, and here we discuss about the uniformly accelerated motion in which acceleration remains constant while velocity increases or decreases by a constant rate. Acceleration constant रहेगा, velocity increase होगी या decrease होगी by a constant rate known as uniformly accelerated motion. Or acceleration means the rate of change of velocity known as acceleration. Means A equals to V minus U upon V. Unit meter per second square. If V greater than U, A will be positive, and if U greater than V, A will be negative, and the negative acceleration known as retardation. That is known as retardation. If final speed less than initial speed, A will be negative, and negative acceleration is known as retardation. Okay? एक होता है instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. लगातार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं v and t का. वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ लेके चल रहे हैं. t टाइम पर वेलोसिटी v है, t प्लस डेल्टा t हो गया टाइम, और वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा t. यहाँ स्लोप जो है एक्सेलरेशन बताएगा. ये हो जाएगा डेल्टा t, ये हो जाएगा डेल्टा v. तो a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t मिलेगा. लिमिट लगी होगी डेल्टा टेंड्स टू 0. Acceleration at any instant when time tends to 0, very close to 0, not equal to 0, that is known as instantaneous acceleration. और चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप dv over dt. Differentiation of velocity with respect to time known as acceleration. और आपको पता है कि v dx upon dt होता है, तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा आपको. d square x upon dt square. That is acceleration. Double differentiation of position is also known as acceleration. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग इक्वेशंस लेके चल रहे हैं. फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो लेके चल रहे हैं. तो फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये लेके चल रहे हैं. नाउ A and B, these are the two different stations. O is the origin of time as well as position. O is the origin of time as well as position. After time t1 with velocity v1, body reaches at point A after covering distance x1. With velocity v2, after time t2, body reaches at point B after covering distance x2. While acceleration remains constant, it remains constant. Because in the case of uniformly accelerated motion, A remains constant, velocity changes by a constant rate,
दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. वेलोसिटी चेंज हो रही और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. ए पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी होगी v1, b पे पहुंचते पहुंचते होगी v2 और ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट ए की डिस्टेंस होगी x1 और b की होगी x2. टाइमिंग्स आर t1 एंड t2. क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलते हैं हम लोग. उसका एक और नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. Velocity time relation. Now, as we know that from the definition of acceleration, the rate of change of velocity, A से B तक अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा? v2 minus v1 upon t2 minus t. v2 minus v1 upon t2 minus t1 is known as acceleration. Now, और v2 minus v1 goes to A plus t2 minus t, बल्कि a into, और v2 goes to v1 plus a t2 minus t. It is first equation of motion. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं. if t1 equals to 0, v1 u बन जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया करते हैं. और अगर t2 को t ले लिया तो आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी? v. अगर यहां लगा दो तो क्या बनेगा? v equals to u plus at. In the first equation of motion, it is also known as velocity time relation. ग्राफ देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ, दैट इज नोन एज vt ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Now, if initial velocity is 0, अगर initial velocity 0 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा. और अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज u हो जाएगा. इधर नेचर ऑफ द ग्राफ, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ, ए पॉजिटिव है तब. अगर ए नेगेटिव है तो ये बन जाएगा. अगर ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव स्लोप, और ए पॉजिटिव है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा. इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन means if we plot the graph between velocity and time for uniformly accelerated motion at the straight line inclined to time axis. चलो इसका यूज लेके चलते हैं. व्हाट आर द यूज ऑफ बीटी ग्राफ? दो यूज हैं, फिलहाल एक यूज लेके चल रहे हैं हम लोग. सेकेंड यूज जो है वो सेकेंड इक्वेशन जब डिस्कस करेंगे वहां अप्लाई करके दिखाएंगे आपको. तो पहले फर्स्ट यूज जानो उसका क्या है. Now, T1 that is V1 and it is A. इसी के हिसाब से ग्राफ बना देते हैं. अब देखें A पर वेलोसिटी कितनी है? V1. टाइम कितना लगा? T1. B पर वेलोसिटी कितनी है? V2. टाइम कितना लगा? T2. बन गया ग्राफ. इसका स्लोप लेके चलते हैं. स्लोप ऑफ VT ग्राफ. tan थीटा या स्लोप क्या मिलेगा? BC अपॉन AC. ये BC कितना है यहाँ पर? V2 माइनस V1. AC कितना है? T2 माइनस T.
v1 अपॉन t2 माइनस t1 किसके बराबर है? एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए आप, a goes to v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। सो व्हाट द कंक्लूजन? स्लोप ऑफ द vt ग्राफ, मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ vt ग्राफ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द कंक्लूजन। क्लियर? इसका सेकंड यूज भी है, और सेकंड यूज हम लोग जब सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे तो वहां पे अप्लाई करके दिखाएंगे आप। इसके दो दो यूज हैं। ये पहला यूज डिस्कस किया, फर्स्ट इक्वेशन डिस्कस किया है, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वीडियो हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेके चलेंगे, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो हम लोग थर्ड इक्वेशन और nth के लिए दो इक्वेशन वहां लेके चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए आप, और इसका भी एक नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोलते हैं इसको, पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन मोशन लेके चल रहे हैं। ए से बी तक अगर हम वी एवरेज निकालना चाहें, वी एवरेज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। भाई यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x1 है, तो x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल कितना हो गया? t2 माइनस t1। सो x2 माइनस x1 हो जाएगा v एवरेज t2 माइनस t, और x2 माइनस x1 इक्वल्स टू v एवरेज, आपको पता है v1 प्लस v2 बाई 2 भी होता है। x2 माइनस x1 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 वैल्यू लगा दो। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन आया था वो क्या था? फर्स्ट इक्वेशन v2 इक्वल्स टू v1 प्लस a t2 माइनस t। अपॉन 2। इसको और सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2v1 t2 माइनस t1 प्लस a t2 माइनस t1 का स्क्वायर बाई 3, और x2 माइनस x1 इक्वल्स टू v1 t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का स्क्वायर। क्लियर? ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इफ t1 0, x1 क्या था? 0 था, हमने यहां पे दोनों 0 लेके चल रहे हैं। t2 का टू t, x2 का टू x बन जाएगा, और यहां जब t1 0 लेके चल रहे हैं तो v1 क्या बन जाएगा? u बन जाएगा। ये कंडीशन यहां लगा दो, क्या मिलेगा? जब इसमें लगा दोगे तो x2 माइनस x1 की जगह अभी हो जाएगा x, v की जगह u हो जाएगा,
तो जाएगा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? चलो इसका ग्राफ देखते हैं। पोजीशन टाइम का ग्राफ तो बाद में लेके चलेंगे, पहले वीटी ग्राफ का सेकंड यूज डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट द सेकंड यूज ऑफ द वीटी ग्राफ वो लेके चलते हैं, ठीक है? तो इसका एरिया लेके चलते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, इसका एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम आप देख रहे हैं, क्या बनेगा? एरिया हाफ 81 BT2 into AC। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम लगाते हैं, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। इट इज इक्वल्स हाफ V1 प्लस V2, ये V1 हो गया, V2 हो गया, और AC किसके बराबर है? T2 माइनस T। तो जरा देखें आप, हाफ V1 प्लस V2 T2 माइनस T1 किसके बराबर है? X2 माइनस X1। यहां से देखो क्या मिला आपको? X2 minus X1. What is X2 minus X1? Displacement. X2 minus X1 is a displacement. So what the conclusion? Area under VT graph is measurement of distance or displacement for uniformly accelerated motion. Area under velocity time graph for uniformly accelerated motion is measurement of distance or displacement. इसके दो यूज हो गए। इज इट क्लियर? पहला यूज क्या था? स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड व्हाट द सेकंड यूज? एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इस सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब है पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, that is known as position time graph. और पोजीशन टाइम लिख सकते हो आप। पोजीशन टाइम ग्राफ लेके चल रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। इससे ग्राफ मिलेगा, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर x नॉट गिवन है तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ये ग्राफ है, इट्स फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये a नेगेटिव के लिए हो। जब a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ है। इसका भी यूज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो यहां से कैलकुलेट करके दिखाएंगे। t it is x, t plus delta t, x plus delta x। पोजीशन टाइम का ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। BC मिलेगा डेल्टा x डेल्टा t, तो लिमिट लग जाएगी डेल्टा t टेंड्स टू 0, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। दैट इज नॉट एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग,
the rate of change of position known as velocity. तो पोजिशन टाइम ग्राफ का यूज क्या रहा? We can calculate the instantaneous velocity from the position time graph. Clear? न्यूमेरिकल लेके चलते हैं. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पर कुछ न्यूमेरिकल लेके चलते हैं. जानो. पहला न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग. उसका स्टेटमेंट ये है, on turning a corner a motorist rushing at 44 meter per second finds a child on the road 100 meter ahead. He instantly stops the engine and applies the brakes so as to stop it within 1 meter from the child. Calculate the time required to stop it. क्वेश्चन जाने, दोबारा स्टेटमेंट सुने. On turning a corner, a motorist rushing at 44 meter per second finds a child on the road 100 meter ahead. He instantly stops the engine and applies the brakes so as to stop it within 1 meter of the child. Calculate the time required to stop it. तो वो क्या क्या दिया हुआ है? एक तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 100 minus 1 means 99 मीटर. 1 मीटर पहले रोकना चाह रहा है. एंड यू दे रखा है 44 मीटर पर सेकेंड. स्टॉप कर रहे हैं, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. एंड फिर हमें कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है. हमें टाइम कैलकुलेट करना है. तो v इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा एक. चलो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अभी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा इसका प्रूफ. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये 0 होगी. u स्क्वायर प्लस 2 इंटू u दे रखा है 44 का स्क्वायर हो गया 2a. s कितना हो गया? 99. ऑब्वियसली रिटार्डेशन आएगा. ये रिटार्डेशन आ गया ना. और मैं टाइम निकाला तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं. u हमें पता है, t मिलेगा 44 इंटू 9/88, 4.5 सेकेंड. इस तरह आपका ये पहला आंसर हो गया. एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं. इंस्ट्रूमेंट सुने. A racing car moving with constant acceleration covers 2 successive kilometers in 30 seconds and 20 seconds respectively. Find the acceleration of the car. फिर से सुना स्टेटमेंट. A racing car moving with constant acceleration covers 2 successive kilometers in 30 seconds and 20 seconds respectively. Find the acceleration of the car. Okay? तो देखो क्वेश्चन बना. तो 2 सक्सेसिव किलोमीटर, पहला हो गया 1000 मीटर बन जाएगा. और t1 कितना दे रखा है? 30 सेकेंड्स.
क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, अगला जो किलोमीटर है वो 20 सेकंड में कवर कर रहा है वो, तो हमने 2000 ले लिया, टाइम कितना कर दिया 50, 30 प्लस 20, ये इक्वेशन। पहले वाले को देखो तो 100 इक्वल्स टू 3u प्लस हाफ a, क्योंकि हमने 10 कॉमन ले रखा है, 100 इक्वल्स टू 3u प्लस 45a बन गया। दूसरे में देखो आप, चलो उसमें हम 10 कॉमन ले लेते हैं, 5u प्लस हाफ a, वन 125a बन गया। दो इक्वेशंस बन गई। तो फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो को लेके चलेंगे थर्ड इक्वेशन और डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 5वें सेकेंड में, 8वें सेकेंड में, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और वो दोनों इक्वेशंस प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो।